अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माई सेल्फ हमना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के हम इस वीडियो में कुछ ऐसा ट्राई करने जा रहे हैं जो हमने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, एंड दैट इज़ पेस्टल्स। पेस्टल्स 3 किस्म के होते हैं, एक तो ऑयल पेस्टल्स होते हैं, दूसरे सॉफ्ट पेस्टल्स होते हैं और तीसरे ड्राइड पेस्टल्स होते हैं। जो मैं आज अपनी वीडियो में इस्तेमाल करूँगी दोज़ आर ड्राइड पेस्टल्स। ड्राइड पेस्टल्स जो होते हैं वो काफ़ी इंटैक्ट होते हैं, इनका चॉकी सा टेक्सचर होता है, बट स्टिल वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते कि वो ईज़िली ब्रेक कर जाएँ या जो है ना बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हों कि आप उनसे एजेस नहीं बना सकते या शार्प एजेस के साथ आप कुछ आर्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वेयरएज़ सॉफ्ट पेस्टल्स जो होते हैं वो बहुत ही जो है ना सॉफ्ट ऑलमोस्ट क्रीमी टेक्सचर के होते हैं। ठीक है, और वो वाले होते हैं जो यूजुअली बिगर साइज़ेज़ में आते हैं, आप उनसे जो है ना शार्प एजेस नहीं दे सकते अपने आर्ट को, और दोज़ आर लाइक ईज़िली ब्रेकेबल। और तीसरी जो कैटेगरी है ऑयल पेस्टल्स की, दे आर मोर ऑन द कैरी ऑन साइड्स। वो उनका जो टेक्सचर होता है वो चॉकी नहीं होता, डस्टी नहीं होता, उनका जो टेक्सचर है वो ऑयल सॉरी नॉट ऑयल वो क्रेयॉन की साइड पे होता है। जिस तरीके का टेक्सचर क्रेयॉन्स का होता है बिल्कुल वैसा ही उनका ऑयल पेस्टल्स का भी वैसा ही टेक्सचर होता है। We will be using soft pastels too, not in this video, later someday. We will also be using oil pastels too. Again, not in this video, later someday. I have planned of doing that too, but we will do it, move towards them slowly, because I also have to do my original art pieces, and I also have to bring out some time for them as well. So, because this is my first time trying the dried pastels, so I want to do something more similar and something basic. That's why I chose avocado. And the two techniques I learned to create art out of dried pastels, I will be teaching those two in this video. One is like where you're going to use your brushes and water, and giving it like the very softer, very ethereal, very dreamy texture, like nothing sharp, nothing too overpowering, nothing too vibrant. And then the second technique is where you're gonna use your anger and your aggression. Yeah, you are going to use your aggression and take it out onto the dried pastels, and you just rub them on the surface and aggressively on the surface, and then there you get the result. I like more of the second technique where you use your anger and aggression, since I myself is a very aggressive person. Not because of that, of course. Because that in that technique, you could blend dried pastels much better than the other technique where we use the brushes and water and cotton and all of that things. So, yeah, and this is also for you as well. If you are going to try something for the first time, don't try something next level. Try with the basic so that you could understand the nature of the medium and the texture of the medium, and you could also understand the texture of the medium itself, and also that in which texture this medium works the best. So, the first try is always the learning try. You don't have to, excel in it. First, you have to learn about that medium. First, you have to learn about its patterns, its principles, and then you could create some masterpiece. So after this video, I will again be posting about dried pastels, and in that one we will try something difficult. But in this one, we are starting off basic. So without any further ado, let's just begin with this video.
तो सबसे पहले हम मास्किंग टेप से अपने जो ये शीट है उसको कार्डबोर्ड से ऐड कर देंगे ताकि वो मूव ना करे ज़्यादा। दीज आर द सॉफ्ट पेस्टल्स विच आई एम यूजिंग। ये बेसिकली उनकी ड्राइड कैटेगरी है जिसके ये काफ़ी इंटैक्ट होते हैं और इनका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल चॉक की तरह होता है। इस तरीके से शेप में होते हैं ड्राइड वाले और ये काफ़ी इंटेक्ट होते हैं, ये इजीली ब्रेक नहीं करते। इनका बिल्कुल चॉक जैसा टेक्सचर होता है। जैसे ही मैंने जो है ना अपनी फिंगर रब की है तो ये पिगमेंट जो है मेरे हाथ के ऊपर आ गई है। बहुत स्मूथ, बहुत चॉकी, बहुत डस्टी सा इनका टेक्सचर होता है। तो दीज वंस आई एम यूजिंग। और इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हैं ब्रशेस। तो सबसे पहले ये जो है ना ब्लश ऐड करने वाला ब्रश है जो कि जिसके ब्रिसल्स ख़राब हो गए थे, तो आई एम नाउ करेंटली यूजिंग इट फॉर दैट। और ये मेरे फादर की शेविंग किट का ब्रश है। दीज आर वेरी गुड फॉर ब्लेंडिंग, लाइक इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी प्रोफेशनल ब्रश, कीप दीज। और ये जो है पेंटिंग वाली ब्रशेज़ हैं नॉर्मल सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ। उसके अलावा हमें कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली फॉर द ब्लेंडिंग पर्पज़ अगेन। और उसके अलावा जो है हमें टिश्यू पेपर चाहिए होता है। टिश्यू पेपर इसलिए ताकि ज़्यादा हमारे हाथ की वजह से मैस क्रिएट ना हो, क्योंकि जब हम हाथ रख के बना रहे होते हैं तो ऐसे चौकी और डस्टी टेक्सचर जो होते हैं ग्रेफाइट वगैरह या दूसरे जो हैं वो इस ईज़िली स्मज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उसके लिए टिश्यू पेपर वगैरह या पीस ऑफ क्लॉथ इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग हम शेडोज़ ऐड करेंगे, उसके बाद हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हम ऑयल पेंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ बिल्डिंग अपॉन ईच कलर। तो सबसे पहले हमने लाइटेस्ट शेड दैट इज़ लाइम येलो जो है इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम ब्रश की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे शीट के ऊपर। और जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि जो है ना ब्रश उसको अच्छे से जो है ना पूरे पेपर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा थिन लेयर के अंदर, और जितने भी मोटा टेक्सचर है उसको हटा के थिन लेयर के अंदर उसको पेज के ऊपर स्प्रेड कर रहा है। उसके बाद हम उसके ऊपर डार्केस्ट शेड जो है वो ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ब्लेंडिंग और फ्यूजिंग को लोग बहुत ज़्यादा जो है ना कंफ्यूज करते हैं। लोगों को ये लगता है कि ब्लेंडिंग मीन्स कि दो कलर्स आपस में मिलके एक नया कलर बना लें। ब्लेंडिंग डज नॉट meant that when you are blending something on the surface or on the painting। ब्लेंडिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि जो दो कलर्स हैं वो आपस में बराबर बराबर खड़े हुए हों तो उनके दरमियान एक परमानेंट प्रोमिनेंट लाइन नज़र ना आए। वो इतने जो है ना सीमलेसली ब्लेंड हों एक दूसरे के अंदर कि वो बराबर बराबर अलग अलग अपने शेड्स नज़र भी आए और वो आपस में उनके दरमियान में कोई क्लियर प्रोमिनेंट लाइन मौजूद ना हो। दैट इज़ अ गुड ब्लेंडिंग। और जो है जो दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं वो ये है कि कलर्स को आपस में जो है ना ऐसे ब्लेंड करना है कि वो दोनों आपस में मिल के एक नया कलर बना लें। वो चीज़ आप अपनी पैलेट में कर सकते हो बहुत आराम से। पैलेट वो जो पेंटिंग की पैलेट होती है उसके अंदर आप ये काम कर सकते हो कि दो कलर्स मिला के एक नया कलर जो है बना लो। दैट इज़ नॉट ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग ऑन द सरफेस वो मिक्सिंग है, ठीक है। टू बी क्लियर, दैट इज़ मिक्सिंग नॉट ब्लेंडिंग। मिक्स करके आप जब एक नया कलर बनाते हो, ब्लेंडिंग यही है कि दो कलर्स वो अपने एक्चुअल कलर में और अपने एक्चुअल शेड में मौजूद रहें, बस एक दूसरे के बराबर ऐसे मौजूद हों कि उन दोनों के दरमियान आप एक लाइन ढूंढ नहीं पाओ, वो ऐसे जो है ना आपस में फ्यूज़ हुए हुए हों, ठीक है। तो दैट इज़ ब्लेंडिंग। नाउ बैक टू द वर्क वी वर डूइंग। अब मैं जो है ये लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रीन ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ पैरेट ग्रीन। और फिर इसके ऊपर मैं येलो भी यूज़ करूँगी ताकि उन दोनों कलर्स को आपस में अच्छे से जो है ना ब्लेंड किया जा सके। अब हम जो भी कलर ऊपर से करेंगे, लाइक जैसे डार्कर ग्रीन करेंगे, अब हम ग्रीन ग्रेजुअली डार्कर 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 शेड की तरफ मूव करेंगे। तो जब हम दूसरे डार्कर शेड्स भी ग्रीन के यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी हम येलो को आप ऊपर से लाके ब्लेंड कराएंगे।
क्यों? ताकि वो पूरी ओवरऑल एक पिक्चर नज़र आए। अगर हम सारे कलर्स ऐसे अलग 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 छोड़ देंगे तो फिर उनके दरमियान लाइन ढूंढना बहुत आसान होगा। इसलिए जितने भी कलर्स हम ऐड करेंगे उनको आपस में ब्लेंड ज़रूरी तौर पे करवाएंगे। ऊपर से एक शेड हमेशा ऐसा यूज़ करेंगे जो कि सारे कलर्स को एक साथ बाइंड कर दे, वो अलग से नज़र ना आए, पूरी तस्वीर जो है वो फ्लॉलेस नज़र आए, पूरी पिक्चर स्मूथ नज़र आए और पूरी पिक्चर जो है वो कंप्लीट नज़र आए। ठीक है, तो ये जो है मैंने वही किया है। डार्कर शेड यूज़ करने के बाद उसके ऊपर हम जो है येलो से ब्लेंडिंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी डार्केस्ट शेड जो कि हम एजेस पे यूज़ करेंगे एवोकाडो के, क्योंकि वो वाला शेड है जो कि स्किन का शेड है। स्किन का शेड जो अंदर जो एवोकाडो होता है उससे बहुत ज़्यादा डार्कर होता है, तो हम वो वाला कलर फिर अंदर ब्लेंड नहीं करेंगे। अभी जो मैं एक शेड यूज़ करूँगी ग्रीन का, जो कि नॉट द डार्केस्ट वन, उससे एक शेड लाइट, तो वो वाला जो है, ये वाला जो शेड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो है इसको हम अंदर की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे एवोकाडो का। लेकिन इसके ऊपर जो हम सबसे डार्केस्ट शेड करेंगे फिर उसको हम अंदर ब्लेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्किन का कलर है, उसको अंदर ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो होता ही सिर्फ बाहर है कलर, क्योंकि ठीक है। और ब्लेंडिंग के ब्लेंड कर रही हूँ जैसे कि मैं, आप देख सकते हैं। और ब्लेंडिंग के लिए ऑब्वियसली आप अपनी फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं तो कहती हूँ फिंगर्स ही यूज़ कर लो, फिंगर्स सबसे अच्छी ब्लेंडिंग करती है। वो इस वजह से क्योंकि जो आपके स्किन की जो वार्मनेस होती है वो बहुत अच्छे से कलर्स को आपस में ब्लेंड करती है। और मैं सोचती हूँ इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप अपने आर्ट को अपने फिंगरप्रिंट्स दो। तो मैं पेंटिंग वगैरह में भी अक्सर ब्लेंडिंग वगैरह में अपना हाथ ज़रूरी तौर पे यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई वांट माई each and every art piece to have my fingerprints. That's like my style of owning my art. Like that's my art and it should have fingerprints. Like लियोनार्डो डा विंची की भी बहुत सारी पेंटिंग्स के अंदर उनके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। Like that's how you exist for forever. So I think it's the bestest way टू डू इट। और ये जो है ना, ये एक टेक्निक है, इसको जो है ना मैं दूसरी जो अपनी ऑयल पेस्ट सॉफ्ट पेस्टल्स की वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंदर और डिटेल में बताऊंगी कि जो है ना किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट देने के लिए पहले जो है सॉफ्ट पेस्टल को स्क्रैप आउट करते हो और उसके बाद ब्रश से उसको ब्लेंड कर देते हो, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट आता है। अगर मैं डायरेक्ट जो है ब्लैक सरफेस के ऊपर डायरेक्टली इस्तेमाल करती तो फिर वो ज़्यादा डार्कर इफ़ेक्ट देता और फिर वो शेडो का ना सॉफ्टवेयर सा जो इफ़ेक्ट होता है ना वो नहीं क्रिएट कर पाता। अब ये दूसरे वाले एवोकाडो का मैं सिर्फ सीड बना के दिखाऊंगी और इसके अंदर हम दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ वेयर यू हैव टू यूज़ योर एंगर एंड एग्रेशन। और ये टेक्निक मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेंडिंग थी कलर्स की वो ज़्यादा लाइक आई वुड से ओरिजिनल लग रही थी। लाइक बीच में कोई चीज़ पकड़ना वॉज डिफ़िकल्ट ना। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, कुछ ब्रशेस कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपको बस जो है अग्रेसिवली रब करना है अपने पेस्टल को against the surface of the sheet you are using. That's it, that's all. और इसके अंदर जो है जो ब्लेंडिंग थी वो ज़्यादा जो है अच्छी हुई और जो है ना कलर्स आपस में फ्यूज़ ज़्यादा अच्छे से हुए और जो है ना एक दूसरे के ऊपर अपीयर भी वो ज़्यादा अच्छे से हो रहे थे और ज़्यादा रियलिस्टिक, ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा पिगमेंटेड इफ़ेक्ट जो है इसका आया। तो आई वुड प्रेफर दिस सेकंड टेक्निक। और इसका फ़ायदा भी है, लाइक यू वुड बी फ्री फ्रॉम योर ऑल द एंगर एंड अग्रेशन एंड इट्स गुड टू टेक इट आउट एंड आर्ट इज़ द बेस्टेस्ट मीडियम टू टेक इट आउट, आई वुड से। तो ये टेक्निक मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है एंड सेकेंडली इसमें ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप देख सकते हो दोनों एवोकाडोज़ में से जो जिसके अंदर अग्रेशन यूज़ की गई है वो ज़्यादा ब्राइटर नज़र आ रहा है, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और वो ज़्यादा आई कैचिंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये है फाइनल लुक। आई एब्सोल्युटली लव्ड डूइंग इट।
So this is it. This was all for today. I hope you people loved it. I hope you people learned with me, and I hope you people enjoyed with me. As I said earlier, that you don't have to excel for the first time. First time is always for learning, and it's okay if it doesn't go the way you want it to go, because that one time is for learning. The first time is for learning. If you learn and the piece is ruined, it's a win-win situation. So yeah, we'll see you into the next video. Until then, Allah Hafiz, and the next video is again going to be about dried pastels. And in there, we will try something complex, something different, not as basic as this avocado. So, until then, Allah Hafiz.